નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। લંકાપતિ રાવણ મહાદેવનો પરમ ભક્ત, મહાશક્તિશાળી। આખરે ક્યાંથી રાવણને મળી હતી અદ્ભુત શક્તિ? પૌરાણિક શાસ્ત્રો કહે છે કે રાવણે આકરું તપ કરીને ભગવાન શિવ પાસે વરદાન માંગ્યું હતું, તો પછી ક્યાં કરી હતી લંકાપતિએ તે શિવ સાધના? અમારી ટીમનો આ કથા સાથે જોડાયેલા એક દાવા સામે સામનો થયો। છત્તીસગઢમાં ગાઢ જંગલમાં એક અલૌકિક શિવલિંગ છે। કહેવાય છે કે રાવણે આ શિવલિંગની સાધના કરી હતી। દાવો કરનારાઓએ કહ્યું છે કે શિવલિંગનો ચમત્કાર તેનું પ્રમાણ છે। ત્યારે આ જ મુદ્દે જોઈએ અમારી વિશેષ રજૂઆત રાવણનું શિવધામ। શું ખરેખર આ શિવલિંગ સફેદ દૂધનો રંગ વાદળી કરી નાખે છે? ચમત્કાર થાય છે કે પછી આંખોનો ભ્રમ છે? જે પણ છે તે રાત પછી જ ખબર પડશે। ધામ પર પહોંચતા મોડું થઈ ગયું હતું। ખરાબ હવામાને મુશ્કેલી હજુ વધારી। ગાઢ જંગલમાં રાત્રે કોઈ મળવું પણ મુશ્કેલ હતું। પછી ચૂપચાપ રાત્રે આગ સામે બેસી અમે રાહ જોવા માંડ્યા। આ અદ્ભુત શિવલિંગનું રહસ્ય ઉકેલવા માટે અમારી ટીમ છત્તીસગઢના રાયપુરથી ધમતરી પહોંચી હતી। સવાર પડતા જ શિવલિંગ સ્પષ્ટ જોવા મળતું હતું। આ તો એક પ્રાકૃતિક શિવલિંગ હતું। આકાર એકદમ વિશાળ અને શિવલિંગ થોડું ખરબચડું। सप्तऋषियों की इस पावन धरा और छत्तीसगढ़ के सिहावा से शुरू होने वाले दंडक वन के बीचों बीच यह है भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग। 4.5 फीट के जमीन से निकले हुए इस स्वयंभू शिवलिंग को लेकर कई चमत्कारिक दावे किए जाते हैं, लेकिन इस शिवलिंग की प्रमुख मान्यता यह है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। सागर मंथन के वक्त जब विष की उत्पत्ति हुई तो उस विष को भगवान शिव ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया और उसी वक्त से भगवान शिव नीलकंठेश्वर कहलाए। कहते हैं कि 4.5 फीट के इस स्वयंभू शिवलिंग में भगवान शिव का वो नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है और सैकड़ों लोग उस रूप को इस शिवलिंग में देखने के दावे भी करते हैं। આ શિવલિંગ એક ખુલ્લા આકાશ નીચે હતું। ન કોઈ દિવાલ, ન કોઈ છત, ચારે બાજુ ગાઢ જંગલ। આબાદીના નામ પર બસ માત્ર કેટલાક પૂજારીઓનો પરિવાર, જે હવે શિવલિંગની પૂજાની તૈયારીમાં લાગી ગયા હતા। જેવો શિવલિંગને જળાભિષેક થયો, અમારી ટીમની નજર ત્યાં જ મંડાઈને રહી। પાણીના રંગમાં કોઈ બદલાવ ન જોવા મળ્યો। નીચે જોવા મળતો લાલ રંગ શિવલિંગ પર લગાવેલા કંકુનો હતો। પછી પૂજારીએ કહ્યું કે માત્ર દૂધનો રંગ બદલાય છે। आज भी अगर आप गैया की दूध का शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो जिस समय आके स्थित रहते हैं तो तुरंत नीला हो जाता है। आज भी जो मतलब डालना चाहे, आजमाना चाहे तो डाल कर देख सकते हैं। अच्छा, उसमें डाल के देख सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मतलब नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल होना ही है उसको। अच्छा, क्योंकि परमात्मा स्वयं है ना, स्वयं वो है। अच्छा, स्वयंभू है। जी, जी। तो कब से आप लोग देखते हुए आ रहे कि दूध जो है वो नीला हो रहा है और वो इस तरीके से? हम इनको तो मतलब ये यानी प्राचीन काल से है। हाँ। और जब से हमें जानकारी हुई है स्वामी जी के द्वारा, और तब से ये मतलब डालते चले आ रहे हैं, तो बस ऐसा नीला हो जाता है। जी जी। પણ કેવી રીતે? શું કોઈ કેમિકલ લોચો છે? લોકો કહે છે આ ચમત્કાર છે। શિવલિંગમાં મહાદેવનો વાસ છે, જેમના નીલકંઠથી દૂધનો રંગ પણ બદલાઈ જાય છે। પુરાણોમાં લખ્યું છે કે મહાદેવે વિષપાન કર્યું હતું। વિષના કારણે તેમનો કંઠ વાદળી થઈ ગયો હતો। ત્યારથી મહાદેવને નીલકંઠ કહેવામાં આવ્યા। वही नीलकंठेश्वर रूप आज भी इसमें मौजूद है, मानते हैं?
हाँ, आज भी वही मौजूद है। क्यों? क्योंकि विष का प्रभाव ही दूध को जो है नीला करता है, इसलिए उसको नीलकंठेश्वर कहा है। જો તેવી વાત છે તો પછી મહાદેવનો વાસ આજ શિવલિંગમાં કેમ? બાકી જગ્યાઓ પર કેમ નહીં? તો દાવો છે કે આ શિવલિંગ યુગો જૂનું છે, ત્રેતા કાળનું છે, જેની પૂજા શિવના પરમ ભક્ત રાવણ કરતા હતા। आज भी यहाँ पर रावण एवं उनके पूर्वज समय पे जो है पूजा करने आते हैं। रावण की दादाजी पुलत्स्य ऋषि की जो पावन जो तपोवन है, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी सिंघोला पर्वत पर जो है स्थित है। રામાયણ મુજબ ત્રેતા યુગમાં દંડક વનમાં રાવણનું જ રાજ હતું, જે શિવના પરમ ભક્ત હતા। રામાયણમાં દંડક વનનો ઘણીવાર ઉલ્લેખ છે। હોઈ શકે ચમત્કારનો આ દાવો એક કહાની હોય, તો પછી શિવલિંગ પર ચડતા દૂધનો જ રંગ કેમ બદલાય છે, પાણીનો કેમ નહીં? જો અસર કોઈ કેમિકલની હોય તો દૂધનો રંગ દરેક વખતે બદલાવો જોઈએ, પણ આવું કોઈ વાર જ થાય છે। આ ચમત્કાર થાય છે કે નહીં તેની તપાસ કરવાનો હવે समय આવી ગયો હતો। भीमा कोटेश्वर शिवलिंग के इस गर्भगृह के अंदर जब भी आपको प्रवेश करना है तो इस गर्भगृह के नियम कानूनों को मानते हुए ही आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। गर्भगृह के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ लिखा हुआ है कि धोती पहनकर ही आप गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, जिसके चलते हुए मैंने भी धोती पहन ली है। इस गर्भगृह को लेकर मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी आस्था श्रद्धा से और इस गर्भगृह के नियम कानूनों को मानते हुए इस शिवलिंग की पूजा करता है, उसी व्यक्ति को नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन इस शिवलिंग में होते हैं, जिसके चलते हुए हम लोग भी इस शिवलिंग के इस गर्भगृह के सारे नियम कानूनों को मानेंगे और उसी के अंतर्गत हम लोग इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। શિવલિંગને નજીકથી જોયો, સાચે જ આ સ્વયંભૂ લાગી રહ્યું હતું। गर्भगृह के अंदर आने पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये शिवलिंग जमीन के अंदर से निकला हुआ स्वयंभू शिवलिंग है। किसी तरीके से पत्थर को काट कर या तराश कर बनाया गया शिवलिंग नहीं है। युगों पुराने इस शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि जब भी शिवलिंग के ऊपर से दूध का अभिषेक किया जाता है, दूध प्रवाहित किया जाता है, तो दूध अपने आप नीला हो जाता है। लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस शिवलिंग के अंदर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव आज भी विराजित है और उसी की वजह से दूध का रंग नीला हो जाता है। यहाँ पर कई लोगों ने इस शिवलिंग का अभिषेक दूध से किया है और शिवलिंग के पास यहाँ पर दूध जमा है। इस दूध को अगर हम लोग देखें तो नीले रंग का ये दूध हमें दिखाई दे रहा है, जबकि दूध का जो कलर होता है वो एकदम सफ़ेद होता है, दूधिया होता है, लेकिन यहाँ पर जो दूध हमें दिखाई दे रहा है वो नीले रंग का दूध हमें दिखाई दे रहा है। પડતાલ શરૂ કરતા પહેલા શિવલિંગને પાણીથી ધોવામાં આવ્યો, જેથી કોઈ કેમિકલ હોય તો સાફ થઈ જાય। इस शिवलिंग से पूजा की सारी सामग्री हटाने के बाद अब इस शिवलिंग को हम पानी से धो रहे हैं। पानी से इस शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। अगर इस शिवलिंग की चट्टान पर किसी प्रकार का कोई कलर या रंग लगा हो तो पानी के साथ भी वो मिल जाएगा और पानी भी अपना रंग बदल देगा, लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पानी पूरी तरीके से पारदर्शी दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके से वो अपना कलर नहीं बदल रहा है। अब ये साफ कपड़ा है, सफ़ेद कलर का एक कपड़ा है। इस कपड़े से हम लोग शिवलिंग को पोंछ लेते हैं ताकि अगर किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो अगर इस शिवलिंग पर लगा हुआ होगा तो वो इस कपड़े पर साफ तौर पर दिखाई देगा। કપડાથી શિવલિંગને સાફ કરવામાં આવ્યો। હવે શિવલિંગ એકદમ સાફ હતું, કોઈ પણ સામગ્રી તેના પર નહોતી। માન્યતા મુજબ જળાભિષેક બાદ શિવલિંગની પૂજા કરવામાં આવી। સૌથી પહેલા અમે બીજા લોકોને દૂધનો અભિષેક કરવા કહ્યું, પણ રંગ ન બદલાયો। કેમ? દાવો તો કંઈક અલગ છે। પછી અમે દૂધનો અભિષેક કર્યો। अब इस शिवलिंग पर हम लोग दूध डालेंगे, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और देखते हैं कि क्या सही में सफ़ेद कलर का ये जो दूध है, दूधिया ये जो दूध है, वो सही में नीले रंग में बदलता है। જેને લોકો ચમત્કાર કહે છે તે ચમત્કાર અમારી આંખો સામે થઈ રહ્યો હતો। देखिए अपने आप में अद्भुत है। जैसे ही हम लोग इस शिवलिंग पर दूध डालते हैं और इस शिवलिंग पर दूध पड़ते ही दूध अपने आप नीले कलर का हो जाता है।
साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूध इस शिवलिंग पर पड़ते ही नीले कलर का हो जा रहा है। ये देखिए इस शिवलिंग पर हम लोगों ने ऊपर से दूध डाला और ये पूरे तरीके से नीला हो गया। और देखिए ऊपर से मैं सफ़ेद दूध डाल रहा हूँ, नीचे जब ये दूध जा रहा है तो ये अपने आप नीले कलर का हो जा रहा है। इस पात्र में मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है। इस तांबरे में जो दूध बचा हुआ है वो सफ़ेद कलर का दूध है, एकदम दूधिया जो होता है, एकदम जो सफ़ेद कलर होता है दूध का, ठीक उसी तरीके से दूध का कलर है। ये शिवलिंग पर हमने चढ़ाया नहीं है, लेकिन शिवलिंग पर जो दूध चढ़ा है उसका कलर साफ तौर पर नीला दिखाई दे रहा है और अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। લોકોની આસ્થાને ધ્યાને રાખી અમે તેને ચમત્કાર કહી રહ્યા હતા, પણ અમારે તો તે જ જાણવું હતું કે આ ચમત્કાર કેવી રીતે થાય છે। રંગ સાથે જોડાયેલો આ ચમત્કાર આંખોનો ભ્રમ તો નથી ને? અમે ફરી તપાસ કરી। ये शिवलिंग के पास दूध का अभिषेक होने के बाद जो दूध जमा है उसका कलर और इस ताम्र का कलर देखिए। ये देखिए अब मैं शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा रहा हूँ, ये नीचे जो है ये नीचे मैं दूध डाल रहा हूँ, तो ये दोनों जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताम्र से जो सीधा दूध जो है ज़मीन पर गिर रहा है वो बिल्कुल सफ़ेद है। ये देखिए यहाँ पर नीले कलर का जो है, नीले रंग का दूध जो है वो जमा हुआ है। ये शिवलिंग से चढ़ने के बाद नीचे ज़मीन पर आया है और ये ताम्र में रखा हुआ दूध, ये दोनों के बीच का अंतर देखिए, ये बिल्कुल नीला है और ये बिल्कुल सफ़ेद दूधिया जैसा दूध का रंग होता है, ठीक उसी तरीके से। अब इस दूध में मैं ऊपर से इस दूध को हम लोग शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने सीधा जो है इस जो पुराना जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो पहले वाला दूध है उसमें हम सीधा इस ताम्र से इस सफ़ेद दूध की धार को छोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ताम्र से गिरने वाला दूध जो है वो सफ़ेद है और नीचे जो है दूध जो नीचे मौजूद है वो पूरी तरीके से नीला दूध है। तो अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार इसे कहे या फिर इसे मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। અમે હજુ પથ્થર સાથે કોઈ રાસાયણિક ક્રિયા થાય તેને લઈ મક્કમ હતા। ये तो अब दूध डालेंगे तो पत्थर है, चट्टान है, तो हो सकता है किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होता हो उससे दूध नीला हो जाता हो, या कोई और अगर जैसे कि पानी डाला जाए तो नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ लिंग के अलावा और चट्टान या एक भी पत्थर नहीं। अच्छा। और दूसरी बात रही गई बात केमिकल की, तो ये जो शिवलिंग है उसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं। क्यों? क्योंकि यह रावण के द्वारा, पुलत्स्य ऋषि के द्वारा या रावण के पूरे परिवार के द्वारा स्वयं पूजित है और यह लिंग सिद्ध सेवी। અમારી ટીમે પણ સફાઈ કરી હતી, કપડાથી પણ લૂછ્યું હતું, છતાં પણ દૂધનો રંગ કેમ બદલાઈ રહ્યો હતો? શિવલિંગનું રહસ્ય વધુ ગહેરું બન્યું હતું। ચમત્કાર અમારી આંખો સામે થઈ રહ્યો હતો। શિવલિંગ પર ચડ્યા બાદ દૂધનો રંગ બદલાઈ ગયો હતો, પણ તેનું કારણ શું હોઈ શકે? દાવો કરનારાઓએ કહ્યું કે તમે ખોટી ચિંતા કરી રહ્યા છો, આ બધું શિવલિંગના જ ચમત્કાર છે, કેમ કે આ શિવલિંગનો સંબંધ રાવણ અને તેના પૂર્વજો સાથે છે। પછી અમને એક સરનામું આપવામાં આવ્યું, દાવો કરવામાં આવ્યો કે ચમત્કાર આંખો સામે દેખાવા માંડશે। कहते हैं सिहावा का ये दंडक वन राक्षस राजा रावण और उनके पूर्वजों की तपोभूमि रहा है। यही नहीं तो इस दंडक वन में आज भी रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि के होने के दावे भी किए जाते हैं। इसी दंडक वन में रावण वंश की कुलदेवी निकुंभला देवी एक गुफा में विराजित है और कहते हैं कि आज भी पुलत्स्य ऋषि उसी गुफा में वास करते हैं। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना होगा और उसके बाद ही हम उस गुफा को देख पाएंगे। અમે ગુફા તરફ આગળ વધ્યા। અમને ખબર નહોતી કે પર્વત પર કશું મળશે કે નહીં। બની શકે કે ગામના લોકોનો દાવો ખોટો હોઈ શકે। રહસ્ય ઉકેલવા તે ગુફામાં જવું જરૂરી હતું।
जमीन से करीब 1600 फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ है और इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए हमें इस तरीके से जानवरों की तरह या स्पाइडर जिस तरीके से दीवारों पर चढ़ता है ठीक उसी तरीके से चढ़ाई करनी पड़ रही है। दोनों पैरों और दोनों हाथों का सहारा लेकर इस चट्टान पर, इस खड़ी चट्टान पर हमें चढ़ना पड़ रहा है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है और ऊपर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हमें इसी तरीके से इस चट्टान पर चढ़ना है। अगर ऐसे में हमारा एक गलत कदम इस चट्टान से फिसलता है तो हम सीधे हजारों फीट नीचे गहरी खाई में जा फिसलेंगे। કહેવાય છે કે તે ગુફામાં દાનવોની કુળદેવીની અદ્ભુત પ્રતિમા છે જે અત્યાર સુધી દુનિયાની નજર સામે આવી નથી। कई मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करने के बाद हम लोग इस गुफा तक पहुंचे हैं, जिसके चलते हुए जंगली जानवरों का खतरा होने के बावजूद अब हम लोग इस गुफा से खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते। डर काफ़ी लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने इस गुफा के अंदर जाने का फैसला लिया है। हमारे पास ये एक कपड़ा है और माचिस है। हम लोग इस कपड़े को जलाकर, इस आग को जलाकर इस गुफा के अंदर जाएंगे। जंगली जानवर जो होते हैं वो आग से काफ़ी डरते हैं। ऐसे में इस आग के सहारे हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे और अगर किसी प्रकार का कोई खतरा हमें दिखाई देगा तो हम तुरंत ही इस गुफा से वापस लौट आएंगे। ये आग हम लोगों ने जला ली है और इस अब आग को जलाकर ही हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे। કંઈક નવું શોધવાની જિજ્ઞાસામાં અમે એક ખતરા સામે આંખ મિચામણા કર્યા હતા। बहुत सारा मधुमक्खी है, काफी सारी मधुमक्खियाँ। इधर 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 निकलो निकलो यहाँ से जल्दी। मधुमक्खियों ने हमें डंक मारने की कोशिश की, मधुमक्खियों से बचे तो अचानक एक आवाज गुफा के अंदर से आई कि भारी भरकम कोई जानवर पत्थरों के ऊपर चल रहा है। और उस आवाज से डर के चलते हुए हम तुरंत ही गुफा के बाहर भागे और फिर उसके बाद हमने फिर से आग जलाई है। अब इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत हमें नहीं है और अब इसके चलते हुए हम लोग यहीं से वापिस जो है वापिस कोटेश्वर धाम के लिए यहीं से हम लोग तुरंत निकले। આટલી મહેનત પછી નિષ્ફળતા હાથ લાગતા અમારી ટીમ નિરાશ હતી। पहले ही मैं आप लोगों को जो है समझा दिया था कि आप लोग जो इस गुफा में मत जाइए। क्या है, हम लोग भी कभी कभार ही जाते हैं क्योंकि उस गुफा के अंदर जो है बहुत सारे जंगली जानवर स्थित रहते हैं। कभी कभी मनुष्य की जान की खतरा रहता है क्योंकि गुफा अंधेला है और बहुत लंबा गुफा है और उसमें जो बहुत सारे जानवर रहते हैं, जंगली जानवर। इसीलिए जो है गुफा के अंदर जो है एकाएक प्रवेश ना करें। દંડક વનમાંથી નીકળીને અમારી ટીમ રાયપુરના દૂધ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર પર પહોંચી। ત્યાં કેટલાક નિષ્ણાંતો સાથે વાત થઈ। બધી કહાની જોઈ અને સાંભળ્યા બાદ નિષ્ણાંતોએ કહ્યું કે તમે પથ્થર પાછળ પડ્યા છો પણ ચમત્કાર તો દૂધમાં છે। आपने बताया कि जो जगह के ऊपर आप गए थे वहाँ पे वो किसी जंगल के बीच में है जी और काफ़ी दूर है, तो इवन आप वहाँ से वहाँ तक दूध भी लेके जा रहे हैं तो दूध की अम्लीयता भी बढ़ रही है। ओके, दूध की अम्लीयता जैसे ही आपने दूध का पैकेट खोला या दूध को निकाला उसके बाद से लगातार उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, यानी कि उसमें खटास बढ़ती जाती है।
ये खटास बढ़ती है किन कारणों से, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है, लाइक प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, मतलब जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ही मिल के और उस स्टोन में उपस्थित किसी डाई या किसी तत्व के साथ में रिएक्ट करके करते हैं, नीला रंग होता है। એટલે દૂધમાં જે તત્વો હોય છે તે આ શિવલિંગ પર પડ્યા બાદ એક રાસાયણિક ક્રિયામાંથી પસાર થાય છે. પરિણામે દૂધ વાદળી થઈ જાય છે. શિવલિંગની ખરબચડી સપાટી પર શેવાળનું પાતળું પડ હોય છે, જેની પણ અસર થાય છે. શિવલિંગ પર થતા ચમત્કારને લેબમાં પણ દેખાડવામાં આવ્યો. નિષ્ણાંતોના મતે દૂધનો રંગ બદલાવો કોઈ ચમત્કાર નહીં પણ એક રાસાયણિક ક્રિયા છે. પણ આ બધી વાતો શિવલિંગ પર ચડાવાતા દૂધના દાવાને લઈને છે. આ વાતનો તેની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, જે આ ધામમાં આસ્થા સાથે શીશ નમાવે છે.